Hello student, how are you? Fine? Okay, today I am discuss with you preparation of profit and loss appropriation account. Why the profit and loss appropriation account is prepared? Profit and loss appropriation accounts show the appropriation of profit and loss account. It is the extended form of the profit and loss account. When we involved in the partnership business, that times we have required to the making the profit and loss appropriation account. And other than when we prepare the profit and loss appropriation account, it is the basically adjustment of the partner's expenses, and that is the adjustment of profit we show in the profit and loss account. Basically, when we consider the profit and loss account and the profit and loss appropriation account, the profit and loss account show the charges of the business, and the profit and loss appropriation account show the appropriations adjustments of a profit and loss account. So when we prepare the profit and loss accounts, it show the all the charges. There is no matter the charge is the related to the business and the related to the partners, all the show in the profit and loss accounts. But when we prepare the profit and loss appropriation account in the partnership form, then we are only show the appropriations of the profit. Basically, appropriations of the profit required to the distributions of the salary, distributions of the commission, distributions of the wages, and distributions of the interest on capital, interest on drawing debts. It is the main items to the show in the profit and loss appropriations account, and the appropriations are required in the following items. When we prepare the profit and loss accounts, it is prepared to Indian Partnership Act 1932, according to the Partnership Act 1932, and the absence of the partnership did, it is the extension of the profit and loss account. It is a temporary accounts, and by the nature is nominal accounts. नहीं, it is a temporary, that means कि प्रॉफिट एंड लॉस के एप्रोप्रिएशंस के लिए, या हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द प्रॉफिट को शो करने के लिए इस अकाउंट्स को बनाया जाता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, टेम्पोररी अकाउंट्स बोलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स की तरह इसको जो है बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जाती। क्यों? क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स का जो एक्सटेंडेड फॉर्म होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं उसके डिस्ट्रीब्यूशंस में गड़बड़ होने के कारण, या कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से नहीं होने के कारण इसको जो है बनाया जाता है, ताकि एग्जैक्टली पार्टनर्स के जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशंस हैं वो एग्जैक्टली हो सके, यानी पार्टनर्स को जो मिलने वाले लाभ हैं उसका सही बंटवारा हो सके। इसके लिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। There are some journal entries passes when we make the profit and loss appropriations account. There is two situations are created when the profit and loss account is transferred to the profit and loss appropriation account. जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के लॉसेज को या प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तब क्या होता है। इस कंडीशंस में एक बात ध्यान देने योग्य है कि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स को ट्रांसफ़र करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स की किस चीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं, या तो प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करते हैं या तो लॉस को ट्रांसफ़र करते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में प्रॉफिट या लॉस को ट्रांसफ़र करते हैं तो इस समय हम लोग क्या करते हैं, एंट्री करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्या करते हैं, हम लोग क्रेडिट करते हैं। बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में जो है प्रॉफिट हुआ हो, इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते समय हम इसको क्या करते हैं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स को हम डेबिट कर देते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम लोग क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। अगर में भी लॉसेस हुए हों तब क्या करेंगे, इसका जस्ट रिवर्स इंक्रीज कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है।
फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब हमको कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलता हो, इस कंडीशंस में क्या एंट्री करते हैं? फॉर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट DR, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। ध्यान में रखना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल इंक्रीज होते हैं, और इस कारण क्या होता है कि हम पार्टनर्स के कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। देखिए, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को दो बेसिस पर हम लोग तैयार करते हैं, एक है फिक्स मेथड, एक है फ्लक्चुएटिंग मेथड। जब हम फिक्स मेथड से कैपिटल अकाउंट तैयार करते हैं तो डैट मीन्स कि हम कैपिटल को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करते, यानी कोई भी जो खर्च होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते समय, अगर कोई भी खर्च होता है तो इसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शो नहीं करते। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। एंड जब हम फ्लक्चुएटिंग मेथड से बनाते हैं तब हम क्या करते हैं कि हम करेंट अकाउंट्स के थ्रू जो है इसको मेंटेन करते हैं। खैर, इसके ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे और उसके बाद इस टॉपिक को हम क्लियर करेंगे। अभी हम लोग समझते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या तो करेंट अकाउंट। जब फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग मेथड से बनाया जाता है तब हम क्या करते हैं कि हर चीज़ को, जब हम फिक्स मेथड से बनाते हैं तो हर चीज़ को करेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, यानी उस समय हम कैपिटल अकाउंट को डिस्ट्रक्ट नहीं करते हैं। होने किसी भी तरह का जो इनकम या एक्सपेंसेस है इससे डायरेक्ट प्रभाव क्या पड़ता है, हमारा तो कैपिटल इंक्रीज करता है। लेकिन जब हम फिक्स मेथड से बनाते हैं तो पूरे साल भर कैपिटल को कांस्टेंट रखते हैं, अंत में वर्ष के फाइनेंशियल ईयर के एंडिंग में हम कैपिटल अकाउंट्स में जो है ट्रांसफ़र करते हैं, और इस समय हमको क्या करना पड़ता है कि करेंट अकाउंट बनाना पड़ता है। लेकिन अगर हम फ्लक्चुएटिंग मेथड से बनाते हैं तो इसका मतलब है कि कैपिटल में होने वाले प्रभाव क्या होंगे, कैपिटल इंक्रीज या डिक्रीज होगा, तो उस समय हम लोग कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करते हैं। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ द इंटरेस्ट, ट्रांसफर ऑफ द इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं तो इसका रिजल्ट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को हम लोग इस समय क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। इसके पीछे रीजंस क्या हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट करने के पीछे रीजन क्या हो सकता है? क्योंकि हम पार्टनर्स को मिलने वाले कमीशन, सैलरी, रेम्युनरेशन, हर चीज़ का एप्रोप्रिएशन करते हैं, और इस हर आइटम्स का एप्रोप्रिएशन करने के कारण हमको क्या करना पड़ता है कि जो भी पार्टनर्स को इंटरेस्ट या जो भी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कमीशन, सैलरी, रेम्युनरेशन मिलता है, इन सब को हमको एडजस्टमेंट करने के लिए, एप्रोप्रिएशन करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। लास्ट एंट्री में हम लोगों ने देखा था कि इससे पहले वाले एंट्री में हमने क्या किया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को हमने क्या किया था, डेबिट किया था, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स को हमने यहाँ पर क्या किया था, क्रेडिट किया था। लेकिन जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स को ट्रांसफ़र करते हैं तो हमको पता है ट्रांसफ़र का नियम कि जो डेबिट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट। तो यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट क्या है, ये डेबिट है, और ये ट्रांसफ़र पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा। तो सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के बाद उसको हमको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। सेम टू सेम ये कंडीशन हमारा सैलरी के साथ भी हम देखने को हमको मिलेगा। जब हम सैलरी चार्ज करते हैं फॉर द सैलरी एंड कमीशंस पेबल टू द पार्टनर्स, जब हम पार्टनर्स को सैलरी या कमीशन देते हैं, व्हाट्स हैपेंड दिस टाइम, तो पार्टनर सैलरी एंड कमीशन अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए, इससे पार्टनर्स का कैपिटल इंक्रीज कर रहा है, प्लस हो रहा है, और इस कारण क्या हो रहा है कि हमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो पार्टनर्स सैलरी एंड कमीशन अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर हम दूसरे एस्पेक्ट से इसको सोचें तो कैसे सोच सकते हैं, क्योंकि ये पार्टनर्स को सैलरी या रेम्युनरेशन देना है, फंड के लिए एक्सपेंसेस है, सो इट्स अ डेबिट। एंड अदर थिंग, पार्टनर्स कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल को, या करेंट अकाउंट है तो करेंट अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। और फिर क्या करते हैं, इस सैलरी को जो कि यहाँ पर क्या है, डेबिट है, ट्रांसफ़र करते हैं। ट्रांसफ़र करते समय ये क्या हो जाता है, फिर क्रेडिट, यानी हर एक एप्रोप्रिएशंस को क्या करना है, हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। यानी पार्टनर्स को मिलने वाले सैलरी, कमीशन या रेम्युनरेशंस को हमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते चलना है। ठीक है, नेक्स्ट फॉर ट्रांसफर ऑफ रिजर्व, व्हाट्स हैपन व्हेन द रिजर्व इज द ट्रांसफर। वी नो दैट कि रिजर्व का क्या कंडीशन होता है
रिजर्व जो है वो कहाँ दिखा होता है, पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट DR टू रिजर्व्स अकाउंट बीइंग रिजर्व्स क्रेडिटेड फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग when we calculate the interest and drawing. What is the for the charging interest on drawing partners drawing. अब इसका मतलब क्या है कि पार्टनर्स कैपिटल के ऊपर, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. अगर पार्टनर बिजनेस से पैसा निकलता है, व्हाट डू यू मीन बाय ड्राइंग? इट इज़ वेरी क्लियर. लास्ट टाइम आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में कि व्हाट इज द ड्राइंग. अमाउंट विच इज विड्रॉल बाय द पार्टनर्स फॉर पर्सनल यूज आर कॉल्ड ड्राइंग अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप. तो यहाँ पर जब पार्टनर से आप अपने काम के लिए पैसा निकालेगा तो उस पैसे पर जो इंटरेस्ट है वो किसको देना होगा, फर्म को देना होगा. और ऐसे कंडीशंस में वो क्या करेगा, जब वो उस पर इंटरेस्ट पेड करेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो उसका कैपिटल इंक्रीज होगा या डिक्रीज. नेचुरली आप जानते हैं कि कैपिटल डिक्रीज होगा. तो सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट DR करते हैं और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, घटाते हैं. नेक्स्ट है फॉर द ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. ठीक ऐसा ही ट्रीटमेंट हमको किसके साथ करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के साथ करना है. देखिए यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने क्या कर रखा है, क्रेडिट कर रखा है. अब ट्रांसफ़र का नियम क्या कहता है कि डेबिट्स को क्रेडिट करना है और क्रेडिट को डेबिट करना है. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट क्या है, डेबिट है, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, क्रेडिट है. तो सो ट्रांसफर के अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट जो है डेबिट हो जाएगा एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा. ठीक. इसके बाद फॉर ट्रांसफर ऑफ द प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं, क्रेडिट बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने बताया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसका जनरल एंट्री हम लोग करेंगे. ओके, थैंक यू. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर इसके आगे बात करेंगे और हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं. आज के लिए इतना ही.